Hello students, I'm here with another video from the chapter of class 7 Science NCERT book. The name of the chapter is Transportation in Animals and Plants. So children, before starting today's video, I would like to tell you all that till now what all things we have discussed in this chapter. So children, we have discussed about the first part of the chapter, that is the transportation in animal, which includes the systems like circulatory system and the circulatory system and the excretory system. So we have completed both the systems in the animals, where the transportation is taking place because of the two organ systems which include heart, then blood vessels and blood in the circulatory system, and in the excretory system it includes kidneys, urinary bladder. Okay, then finally what other things which are included are like they include the heart. It includes the circulation. I have given you the explanation of the blood, how it is flowing inside the arteries, inside the veins, inside the atria and the ventricles. Okay, then after that we have seen about the heartbeats, how the heart is beating, and then what kind of contraction and relaxation is taking place inside, what all things are taking place inside the arteries and the veins, and what happens due to if more and more blood is flowing, then what will be the effect on the heartbeat. So you can say that heartbeat could be slower, faster, it depends upon the circulation. Okay, if you are running and then you are seeing or watching your taking care of your heartbeat, and you will see that it is palpitating very faster. And if the things are happening कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सर्कुलेट कर रहा है, तो उस समय में जो भी सर्कुलेशन होगी उस समय बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो करता है. जब अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं कहीं, और अगर नहीं दौड़ रहे हैं, बहुत नॉर्मल कंडीशन में है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हार्ट बीट है वो बहुत नॉर्मल चलती है. Got it? Now, next thing what we have to see is about the excretory system. Excretory system means it is the excretory system consists of the kidneys, ureters and urinary bladder. Okay, and even the it is helpful in the making. It is going to form the urine, which is an excretory product. Okay, now we'll deal with the transportation of the substances in the plants. So we'll study about the transportation in plants. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. नाउ जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो भी रहा है कि नहीं. तो कल कुछ मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताई थी कि यस, ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स ऑल्सो. इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्लांट्स ऑल्सो. एंड देन what things are there which are being transported inside the plants. So plants also will transport the minerals. It is going to transport water, minerals, salts. ठीक है, it gives rise to water, mineral, salts, and also the material which is necessary for the body for the plant parts. ठीक है, it is necessary for the plant parts, and which also could include the transportation of the food also. ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या से चीज़ें हैं और क्या किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है. गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. ओके, वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो आप ऐड करते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कर रहा है प्लांट्स को और कहाँ तक ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेट अस सी. सो इन चैप्टर 1 we have learned that plants take water and mineral nutrients from the soil through the roots and it transports to the leaves. The leaves prepare food for the plants using water and carbon dioxide used during photosynthesis. So what happens during photosynthesis?
during photosynthesis, during photosynthesis, the plants will absorb water, sunlight and minerals in the cells, which helps in the formation of food. Now that food also is going to move from one place to another place. Okay. So what happens? The minerals from the soil they are going to be transported from the soil to the leaves, and leaves also prepare food for the plants using water and carbon dioxide. Okay, sunlight, minerals, carbon dioxide. तो बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट्स, वो सब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती हैं? It is due to transportation. Okay, so it confirms that transportation is happening in the plants. Okay, because if transportation is not happening in the plants, then plants are going to die because they have to absorb water. They are absorbing water, that is why they are growing. ठीक है? अब क्या करते हैं यहाँ पर? The leaves prepare the food for the plants using water and carbon dioxide. During photosynthesis, you have also learnt in chapter number 10 that food is a source of energy, and every cell of an organism gets energy by breaking down of glucose. Now when the glucose breaks down, breakdown of glucose, ठीक है, breakdown of glucose is taking place. अब ये breakdown होने के बाद जो energy यहाँ से रिलीज हो रही है, will translocate, is going to transport. Okay, it is going to transport to all the parts of the plants. Now, the cells use this energy to carry out vital activities of the life. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered that water and the nutrients are absorbed by the roots are transported to the leaves? Yes, it is being transported to the leaves, because if transportation is not taking place to the leaves would droop down, they are going to die because of the absence of water, and then what happens? The complete plant would die if the leaves are only not working, because leaves are said to be as the food factories for the plants. Why? Because photosynthesis has to occur inside the लीव्स ओनली, क्योंकि लीव्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो ज़्यादा अमाउंट में लीव्स में प्रेजेंट है, क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं. सो दीज ग्रीन पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट, trapping the sunlight, and then it is going to increase the energy which is being made because of the presence of the sunlight, water, minerals. वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? वो फूड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वेरियस सेल्स में, वेरियस पार्ट्स में, प्लांट्स पे जाकर के स्टोर हो जाती है. और फिर जब प्लांट को ज़रूरत होती है, वो प्लांट वहाँ से इस ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा और एनर्जी मिल जाती है, रिलीज हो जाती है प्लांट पार्ट्स के लिए. ओके, नाउ next is, however, if the food is prepared by the leaves, it is carried out by the plants which cannot make food. ठीक है, which cannot make food. Transportation of water and minerals are taking place. Plants absorb water and minerals by the roots. The roots also have root hair.
द रूट हेयर्स आर गोइंग टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया. अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, अब हमें दो चीज़ों पर ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके, इवन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. तो पहले हम पढ़ते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. Transportation of water. Water transport. Okay, now plants absorb water and minerals by the roots. So main organ of absorption are organ of absorption are roots. क्यों रूट्स का है? रूट्स जो भी प्रेजेंट होती है, these roots will take up carbon dioxide, water from the soil. ठीक है, they take up roots from the soil. अब ये जो सॉइल से क्यों है रूट्स टेक अप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल? बिकॉज ऑफ रूट हेयर. बिकॉज ऑफ रूट हेयर. ठीक है, बिकॉज ऑफ रूट हेयर. अब आगे देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है. क्योंकि जो भी लीव्स हैं, जो भी रूट हेयर्स हैं, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, इट इंक्रीजेस surface area. It increases surface area. ठीक है, it increases the surface area of the plants. Got it? It increases the surface area of the plants. However, the food is prepared by the leaves that is carried out by which cannot make food. Now, the plant absorbs water and minerals by the roots and the root hairs. What is the main purpose of the root hair? What is the function of the root hair? The function of the root hair is to absorb more and more water to increase the surface area. अब जैसे ही increase करेगा surface area root hair का, root hair absorb करना शुरू कर देता है जो भी soil में water, carbon dioxide और जो भी चीज़ें present है जो important है plants के survival के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The root hair is in contact with the water which is present in the soil particles. क्यों absorb कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर it is in direct contact. It is in direct contact with. It is in direct contact with the soil. ठीक है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल. अब आगे क्या देखते हैं. हैव यू एवर दिस, कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स? वेल, पूजो इज राइट. प्लांट्स ऑल्सो हैव अ रोप लाइक, इट इज अ पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. नाउ द एग्जैक्ट टॉपिक इज इट दैट व्हाई and how the transportation takes place in the plants just because of the roots are present. So what is the structure which is present in the root system which is absorbing the water? So it has thin pipe-like structures present in the soil. Pipe-like structure present in the soil. In the roots, in the plants, you can say. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? From roots to all parts of plants. ठीक है, to all the parts of the plants. Got it? अब इसमें क्या करना है हमको? The tissue is these vessels are called
Okay, so they are going to transport water and minerals from the nutrient from the soil. The vessels are made by the special cells forming the vascular tissue. So why it is happening? These transporting vessels will these transporting vessels have vascular tissue. Vascular tissue. अब ये vascular tissue के अंदर vascular tissue क्या है? Vascular tissue या पहले हम समझते हैं कि tissues क्या होते हैं. So the tissue means it is a group of cells performing special function or one specific function, rather I must say specific functions. ठीक है, it performs the specific functions. अब आगे देखते हैं, जब भी it is a group of cells which perform the specific functions. Got it? A tissue is a group of cells which perform specialized functions in the organisms. The vascular tissue performs the transportation of water and the nutrients in the plants is called as the xylem. The xylem forms a continuous network of the channels that connects root to the leaves through the stem. Okay, and also from the branches, thus the transportation of the water to the entire plants. You also know that the leaves synthesizes food. The food also is to be transported to all the parts of the plants. This is done by the vascular tissue called phloem. Okay, thus the xylem and the phloem transport the substances. अब क्या होता है? इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर, वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर, यहाँ कह रहे टिश्यू क्या है? टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द स्पेशल फंक्शंस. जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स सब जगह है. आप देखिए आपकी स्किन में, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है. जो आईज के टिश्यूज है दे आर ओनली स्पेशलाइज्ड टू सी. नोज के जो टिश्यूज है दे आर ओनली स्पेशलाइज्ड टू स्मेल. टंग के जो टिश्यूज हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पीकिंग, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द टेस्ट. इजंट इट? इसी तरह से अलग अलग ऑर्गन के जो टिश्यू हैं, क्योंकि हर एक बॉडी का पार्ट इज मेड अप ऑफ द सेल्स एंड द सेल इज फॉर्मिंग अ ग्रुप. अगर सेल्स अलग अलग होते तो क्या हमारा बॉडी ऑर्गन बनता? नहीं बनता, है ना. इसी वजह से जो सेल्स हैं वो ग्रुप बना लेते हैं अपना, ताकि वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ताकि वो एक पूरा ऑर्गन बना सके, फिर उस ऑर्गन को ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जा सके. So what happens? These tissue are going to perform a specialized function. कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है. सबका अपना अपना वर्क है बॉडी में. There is division of labor. मतलब कि सबको अपना अपना वर्क करना है. जैसे आईज को देखने का काम दिया गया है, नोज को स्मेल का काम दिया गया है, स्किन को दे हैव टू फील द टच और सेंस का काम दिया गया है. ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग. हार्ट को सिर्फ बीट करने का काम दिया गया है, पंप करने का काम दिया गया है ताकि वो ब्लड सर्कुलेट कर सके. लंग्स को रेस्पिरेशन का काम, ब्रीदिंग का काम दिया गया है. तो ऐसे हर एक सेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन है जो एक ग्रुप में रहते हैं, जिसको हम टिश्यू कहते हैं. इसी तरह से यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू है. दीज वैस्कुलर टिश्यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ठीक है, यहां पे स्पेशलाइज्ड है फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स और फूड. ठीक है, दो काम दिया गया है, एक वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का और दूसरा फूड को ट्रांसपोर्ट करने का. तो जो भी वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं ऐसी वेसल्स, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी वेसल्स हैं उनका नाम है जाइलम. एंड जो फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं उन वेसल्स का नाम है फ्लोएम.
ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ये दो वेसल्स हैं दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन द प्लांट्स. So water transport and food transport के लिए food is being transported by the vascular tissue. देखो जाइलम फ्लोएम को कलेक्टिवली हम vascular tissue भी बोल सकते हैं क्योंकि वो वेसल्स से मिलकर के बना, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड फ्लो करने के काम में आती हैं, उस तरह से प्लांट्स की जो वेसल्स हैं वो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है फ्लोएम से, और जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है इससे जाइलम से. और जाइलम और फ्लोएम को मिला के दोनों क्या चीज है, ये दोनों हैं वैस्कुलर टिश्यू. गॉट इट? दे आर नोन एज द वैस्कुलर टिश्यू. एंड Paheli says her mother puts lady's finger with other vegetables in the water, and if it is dried, she wants to know that how water enters inside them. Means if you're going to put vegetables inside water, sometimes what happens, the vegetables dry up. So for keeping the moisture when the moisture has to regain the moisture. When you are putting inside the water, it is going to regain the moisture. कैसे हो जाता है ऐसा? क्योंकि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पानी जो वेसल में रखा है वहाँ वेसल से लेकर के प्लांट के अंदर, मतलब वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर चला आता है. गॉट इट? फ्रूट्स के अंदर चला आता है. इसी वजह से प्लांट्स क्या हो जाते हैं, पूरे ग्रीन हो जाते हैं. लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी आप समझो, चाहे प्लांट्स फ्रूट्स की बात करिए, वेजिटेबल्स की बात करिए, स्पिनाच की बात करिए, किसी भी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स की बात कर सकते हैं आप. तो अगर थोड़ी भी ड्राई हो रही है तो आप उसको अगर प्लांट को पानी में रखते हैं तो वो आराम से कुछ देर के बाद में ड्राई जो उसका ड्राइनेस खत्म हो जाती है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब फ्रेश हो जाती है. ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का और कुछ फंक्शंस है और कैसे हम इम्प्रूव करेंगे कि प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी है और आपने देखा भी है प्लांट को जब आप पानी देते हैं, डालते हैं पानी, इरिगेट करते हैं प्लांट्स को, यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, देन व्हाट हैपेंस, कुछ देर प्लांट्स की लीव्स बिल्कुल ड्रूप डाउन रहती हैं, लेकिन अगर जैसे ही आप प्लांट को पानी दे देते हैं थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे लीव्स बिल्कुल सही हो जाती हैं. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और जाइलम फ्लोएम ही रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, फॉर प्रूविंग दिस वी हैव टू सी वन एक्टिविटी दैट इज 11.3. वी वुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर, वाटर, रेड इंक एंड अ टेंडर हर्ब दैट इज बाल्सम. कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी टेंडर लीफ ले सकते हैं, पूरा स्टेम ले सकते हैं जिसका जो थोड़ा सा हर्बेशियस स्टेम हो, टेंडर हर्ब हो. Pour the water 1/3 in the tumbler, add few drops of red ink in the water. Cut the base of the stem of the herb and place it in water as shown here in diagram. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, एक टम्बलर लेना है जिसमें वाटर भरा होगा, उसमें आप एक ट्विग रख दीजिए काट के. ओके, विल पुट वन ट्विग. गॉट इट? अब क्या करेंगे हम, इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देंगे. इंक, रेड इंक ले सकते हैं आप ताकि आपको दिखे, विजिबिलिटी क्लियर हो जाए. ये वाटर है एंड ये ट्विग है, किसी भी एक प्लांट की ट्विग हो सकती है. अब थोड़ी देर तक इसको छोड़ दीजिए एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व समथिंग. यू विल सी दैट what would be your observation? Observation would be that the water starts absorbing. ठीक है, does any part of the herb appears red? आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि जैसे आप यहाँ लीव्स में आपको वेन्स में बिल्कुल ये रेड वाटर दिखाई देना शुरू हो जाएगा. ठीक है, लीव्स will be colored in red, the veins will be colored in red. ओके, क्यों आ गई, कहाँ से आ गई? क्योंकि वाटर में आपने इंक मिक्स कर दी थी रेड वाली, जिसकी वजह से वो वाटर के ऊपर एब्जॉर्ब करता है और वाटर
पूरे उसमें फैल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी तरह से। व्हाइट फ्लावर की भी ट्विग ले सकते हैं। एक ऐसा फ्लावर, एक ऐसी ट्विग जिसमें एक प्लांट का ऐसा ट्विग हो जिसमें व्हाइट फ्लावर हो ऊपर, उस फ्लावर को आप जैसे ही पानी में डालेंगे, मतलब ऐसे ट्विग को पानी में डाल देंगे रेड वाटर में, या किसी भी कलर की इंक हो सकती है, रेड रखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ रेड इंक ली है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब, पूरे लीव्स में, वेन्स में रेड कलर आ जाएगा। साथ में जो भी फ्लावर होगा उस फ्लावर में आपको स्ट्रीक्स दिखाई पड़ेंगी, व्हाइट कलर में रेड कलर की स्ट्रीक्स आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट वाटर इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द tumbler inside the plant. From this activity we see that water moves up in the stem. In other words, the stem conducts water. Just like red ink mineral dissolves in the water, also moves up in the stem. Along with the water and minerals go into the leaves, and also the narrow tubes like xylem which is present inside the plants. अब यहाँ पर हमें क्या समझना था कि वाटर और मिनरल्स, जैसे यहाँ पर ट्विग में आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्रूव भी कर दिया कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कैसे प्रूव किया? जस्ट नाउ यू हैव सीन दिस एक्टिविटी दैट यू आर एडिंग दिस colored water in and just putting one twig inside this water, it is going to be absorbed. ठीक है, it is going to be absorbed. अब ये थोड़ा थोड़ा absorb होकर के ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, ऊपर पहुंच जाएगा और फिर आपको वो लाके उसमें बिल्कुल रेड कलर का आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा स्पॉट्स। ठीक है, क्यों दिखाई देना शुरू हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसमें वो पानी में वो सब ट्रांसपोर्ट हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ द जाइलम। जाइलम इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इसी तरह से जो फूड होता है वो लीव्स में बनता है। फूड तो रूट्स को भी चाहिए और फूड फ्लावर को भी चाहिए, फूड बाकी लीव्स को भी चाहिए। तो सारे प्लांट के पार्ट्स में ये फूड को ट्रांसपोर्ट होना है, एंड इसी वजह से ये फ्लोएम एक वेसल होती है जिसमें से ये फूड भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? वाटर के साथ मिक्स्ड होता है मिनरल और वो रूट से अब्जॉर्ब होकर के प्लांट में चला जाता है। ठीक है, प्लांट में चला जाता है। गॉट इट? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जाइलम। यस, एंड जस्ट थिंक ओवर इट दैट जैसे ये थोड़ा सा कलर्ड वाटर चला गया प्लांट के अंदर, क्या जो बहुत सारे टॉल प्लांट्स हैं उनके अंदर भी इतने ही आसानी से वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है? इट इज नॉट सो, क्योंकि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो छोटे प्लांट्स में तो पॉसिबल है, लेकिन बड़े प्लांट्स में पॉसिबल इस तरह से पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई प्रेशर यहाँ पर नहीं है। बट देर इज एन एक्टिविटी बिकॉज ऑफ विच, आई मीन देर इज वन फोर्स, देर इज वन रीजन बिकॉज ऑफ विच the plants are going to absorb water and the tall plants also will be absorbing water। क्योंकि कोई भी बड़ा प्लांट भी होगा, अगर ट्री अगर हम देख लेते हैं, बहुत टॉल प्लांट्स हैं, टॉल ट्रीज हैं, they are not dying, they are green. Now what makes it green? How the minerals, the water, the food, all the things are being transported. They are being transported just because of these two vessels, phloem and xylem. Phloem transports food, xylem transports water. But this water and food is transported because of certain pressure which is being maintained from somewhere. अब ये कौन सा प्रेशर है, कैसे ये चीज़ें मेंटेन हो रही हैं बड़े प्लांट्स में, और कैसे ये बड़े प्लांट्स के अंदर सारे ट्रांसपोर्टेशन बहुत आराम से चल रहे हैं, जहाँ पर कभी भी ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स और टिश्यूज बहुत अच्छे हैं और कोई भी सेल्स का डिसफंक्शनिंग नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा ऐसा फोर्स है या कौन सी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है? So we'll move on to the next topic, that would be telling you about the force which is applied from the external surface and which is going to give you, which is going to help
the plants to grow, to see that how they are going to help in the growth of the plants. ठीक है, how they are transporting the minerals. अब minerals water के साथ ही mix होकर के साथ में water चलता है जब xylem में, तो minerals भी transport हो जाते हैं. Okay children? So this was all about the video. I will be telling you about the next topic would be how the transportation is taking place in the tall plants. Short plants में मैंने आपको अभी just activities जो समझाया, that is enough. But tall plants में कैसे हो रहा है तो वो हम देखेंगे next class में. Okay children, so that's all for today's video. I will be meeting you all in the next class.